بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا میزبان آپ کے ساتھ پھر آ گیا ہے، اور یہ آتے ہی رہیں گے جی جب تک ہمیں کوئی آگے سے یہ نہ کہ بھائی جان کل تو نہ آنا، تب تک ہم ساز و سامان آپ کے دہلیز پہ پہنچاتے رہیں گے۔ سب سے پہلے آج میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام فالورز کا، جنہوں نے ٹویٹر پہ لاتعداد رپلائی اور تھلے آ کے کمنٹس میں بڑی پذیرائی دی۔ ان سب کا بے حد شکریہ، جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیا اور ٹلی بھی دبائی اور بیل آئیکن بھی کلک بھی کیا۔ آج کیونکہ گھریلو ساز و سامان کے لیے زوجہ ماجدہ کے حکم پر ایک پرچی لے کے مورخ جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود تھا، تو ساز و سامان خریدتے اچانک یاد آیا یار فٹافٹ گھر پہنچو، چھیتی چھیتی کر لو۔ ایک چوندا جو ہے نا وہ دماغ میں آئیڈیا آیا۔ اچھا، جو ہی میں نے کیمرہ آن کیا نا، وہ سارا آئیڈیا جو ہے نا وہ اتر گیا کہیں پہ بس۔ اب یہ نہ پوچھیے گا کہاں اتر گیا۔ اب آج کا جو گفتگو کا میں ٹاپک جو ہے وہ میڈیا کی منافقت، میڈیا کی دو نمبری، اور اس میڈیا نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس میں مین سٹریم، سوشل، یوٹیوب، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا ہے یار، ٹک ٹاک، ہر جگہ پہ وہ فساد، وہ گند پھیلایا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ 58 میں جو اس ملک پہ پہلا مارشل لا لگا تھا نا جی، اس سے برا سلوک، اس سے بدترین سلوک جو ہے نا وہ ہمارے ریاستی میڈیا کا ہے، جو اپنے آپ کو ریاست کا چوتھا ستون کہتا ہے۔ بعض دفعہ نا فمبل بھی ہو جاتا، بعض دفعہ بندہ کہنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے اور منہ سے نکل کچھ جاتا ہے۔ اور میرا جو وہ پروڈکشن کا ہے ایک بندہ، وہ کہتا ہے بھائی جان لفاظی کرتے دھیان سے ذرا، کیونکہ بعض اوقات آپ کی لفاظی جو ہے وہ چینل کے گوڈے گٹے میں بیٹھ گئی تو یوٹیوب نے چینل چوک کے پناہ مارنا ہے۔ اچھا جی، میڈیا کا جو بدترین کردار ماضی میں تھا وہ اس فتنہ کو پروان چڑھانے میں سب سے زیادہ پاکستان میں، جہاں پہ ہم جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب ناصور سے لے کے گلزار، جسٹس کھوسا، یہ کھوسا وہی ہے، کھوسا میں حالت روزہ میں ہوں تو دھیان کیجئے گا، ایک تو کھوسا وہ بھی ہے نا وہ، اور ایک وہ بھی ہے لطیف پاک پتن والا۔ اچھا جی، یعنی ہماری جو بیوروکریسی نے، ہماری فوجی سیولین بیوروکریسی نے عمران خان جیسے فتنہ کو پروان چڑھانے میں جہاں پہ اپنا حصہ ڈالا ہے نا جی، اس سے بدترین حصہ اس میڈیا کا ہے۔ 8 فروری سے میں اس سے پیچھے نہیں جاؤں گا، ویسے جانا تو مجھے سالم رکشا لے کے پیچھے چاہیے، لیکن کیونکہ گفتگو پھر لمبی ہو جاتی ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ میرا ایڈیٹر کہتا ہے جی چھوٹی چھوٹی گفتگو کرے، چھیتی چھیتی کر لو تو چھوٹی چھوٹی کر لو۔ ایسے ہو تو نہیں سکتا۔ میں نے اسے کہا یار کہ مجھے جب میں بول رہا ہوں تو روکا نہ کر، لیکن وہ کینچی لے کے ایسا اوترا ہے وہ ہمارا کہ وہ گفتگو کاٹ دیتا ہے۔ بہرحال 8 فروری کی شام کو 5 بجے پولنگ بند ہوئی، اور بھائی جان ووٹاں گنتی کردیاں ابھی جو ہے وہ عملہ کا تھک مک گیا تھا، وہ گنتی شروع تھی۔ 3 سے 5% نتائج کی بنیاد پہ اس فتنہ کو انہوں نے جناب 180 سیٹیں دے دی، اور اس میں جو کردار ہیں وہ میں نام بھی لوں گا جی، جناب ہمارے حامد میر صاحب، ہمارے ٹھیکیدار صاحب، ٹھیکیدار ریاض صاحب، جنہیں آج کل قاضی نے گین گنیگن کیا ہوا ہے جی۔ ویسے قاضی تینوں سلام ہے یار،
काजी फायज ईसा मान गया हूं यार, भावें रिया कख नहीं है रियासत का, लेकिन उस ठेकेदार को आपने स्वाद दे दिया पूरा। सलाम है काजी साहब आपको, शाबाश। और मुअर्रख रहती दुनिया तक जो है वो आपको फर्शी सलाम पेश करता रहेगा कि आपने एक ऐसे हाथी को नथ डाल दी है। यानी वो कहते हैं जी कि इतने जो है वो हाफिज किसी मदरसे में मौजूद नहीं है जितने मलक रियाज साहब अपनी पेंट वाली जेब में बांध के रखते हैं, जो फारग तहसील हो चुके हैं। पर थोड़े लिखे को बहुता समझें। पहले भी जो है वो फैज साहब नाराज थे, फिर बाजवा साहब नाराज हो गए। अब मैं नहीं चाहता भाई मजीद को भाईजान साढ़े तो नाराज हों। अच्छा जी, 3 से 5% नताइज पे एक इमारत खड़ी कर दी इमरान खान की, 180 सीटें उसको दे दी। डिसइंफॉर्मेशन का एक तूफान बर्पा कर दिया। हर जगह पे आपको वो क्लिप मिलेंगे जिसमें हामिद मीर साहब ने ऐलान कर दिया कि जीत गए हैं जी, लैदे गए हैं जी 180। 3 से 5% नताइज अभी आए थे। और फिर क्या हुआ जी, हमारे खैर से मियाँ साहब जेदे की लस्सी का रिड़का लगा के, जेदे की लस्सी अगर आपने लाहौर में पी नहीं है ना तो ईद के बाद ज़रूर पीजिएगा। जेदा जो रिड़का लगाता है क्या ही बात है, ऊपर मलाई डालता है, फिर वाह 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 हो जाती है। और मियाँ साहब ने लस्सी पी ली, मियाँ साहब लैन निकल गए। मैंने वैसे पूछा, मैं कहा मियाँ जी किधर टुर गए सो तुसी 8 दी रात को? कहने लगे यार वो मुझे भूख लग गई थी, मैं तो घर चला गया था। मैं कहा ठीक है मियाँ साहब, अच्छी बात है। यानी रोटी को वहां से इधर नहीं मंगवाया और खुद रोटी के पास पहुंच गए। खैर से पूरी नून लीग हट्टी बंद करके लैना वाल निकल गई, स्पेस मिल गई। मैं बार बार ये कहता हूं और मैं ये कहता रहूंगा कि इमरान खान के फितना को, इस जिन को परवान चढ़ाने में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना, इन सब जमातों का उतना ही हाथ है जितना बाकी किरदारों का है। और भाईजान स्पेस दी हुई है आपने, खुला खेड, खुला खाओ तो नंगा ना हो। जब आप इतनी स्पेस उसको देंगे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो भाईजान वो फिर जिन तो बेकाबू होगा जैसे आजकल हुआ है। बहरहाल इस मीडिया ने ऐसा बदतरीन किरदार अदा किया। और फिर आगे जो लौंडे लपाड़े थे, सदीक जान वगैरह वगैरह वगैरह, वो पूरी एक लिस्ट है। गीला तीतर जो है उसमें वो भी शामिल है। इन्होंने जनाब वो बयानियां बना दिया और वो बयानियां आज तक चल रहा है, फॉर्म 45 और 47। उसमें एक कसूर मैं कहूँगा जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपका है। मियाँ साहब उथे पैरा देना सी, अगर आप पैरा नहीं से दे सकते, मतलब आपको भूख लग गई, आप घर चले गए, और भाईजान किसी को कहना था भाई जी इतने मेरे, वो जिस तरह वो एक जगह वो कहते हैं ना, वो बंदा बेड पे अपना परना रख के चला गया, मेरी सीट मली रवे, को होर ना आके बवे। तो मियाँ साहब परना किसी को फड़ा के जाना सी, भाई इत्थे बैठो मैं आया जी जरा लंगर लैके। तो इस मीडिया ने इस रियासत को डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज को, आज फेक न्यूज की बात करें सबसे पहले तकलीफ किसे होती है? आप देख लेना कि फेक न्यूज क्या है। फेक न्यूज ने जस्टिस काजी फायज ईसा के कानों में से धुआं निकलवा दिया। अगले दिन काजी साहब ने कहा है वह लैदे गए हो मैनू, वो लेटर एयरपोर्ट वाला याद होगा आपको कि जी वो प्रोटोकॉल हो रहा, तो फिर उस पर बयानियां क्या बनाया, काजी फायज ईसा की एहलिया जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करना है, ये पहले भी माल इधर से बाहर जाता रहा। वो खबर किसने दी, वो लेटर किसने जारी किया, ये सब आपको पता है। जैसे एक और खातून हैं, उन्होंने कहा जी जस्टिस काजी फायज ईसा जो मीटिंग कर रहे थे फुल कोर्ट की, उसमें सरीना ईसा भी बैठी हुई थी। यानी गिट्टे जोड़ के झूठ बोल के बयानियां बना के, और वो आग, वो जैसे कहते हैं जंगल की आग की तरह वो फैल रहा है। जंगल की आग की तरह ये बेलगाम मीडिया इस रियासत को आग लगा रहा है। खुदा की कसम रोना आता है इन बकिया जमातों पे। वो तो कर रहा है यार, वो तो जेल में बैठ के आपके साथ जो कर रहा है वो कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं?
25 बंदों की एक टीम बनाई थी कि जी जो भी हमला करेगा रियासत पे हम उसका बयानिए का दफा करेंगे। वो टीम किधर है भाई? पता नहीं, कागजों में कहीं बन गई, कमेटी बना दी, फिर उस कमेटी के ऊपर एक और कमेटी बना दी। अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में मुस्लिम लीग नून और बकिया जमातें ये बिल्कुल फेल हो चुकी हैं। इन्होंने बयानिया को रोकने के लिए उसकी, यार आप उस होता क्या है, वो बात फिर लंबी हो जाएगी, फिर वो एडिटर कहेगा जी एडा लम्मा वीला करता जी। ओ यार मैं क्या करूं अब, या तो मैं बोलना बंद कर दिया या मैं गुफ्तगू जो है वो फास्ट फॉरवर्ड पे करना शुरू कर दूं। ऐसा तो हो नहीं सकता। जिन्नियां हुण साडियां उमरां हो गईयां ने ना, असी फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो सकते हुण, आराम आराम नाल ही। तो इन जमातों का जो किरदार है जी, मुझे सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ, शिकायत वो PMLN से है। और जितनी बाकी जमातें मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठी हुई हैं, उनके तर्जमान हैं, खामोश बैठे हुए हैं, वो एक बयानियां बना देते हैं। ये 2-3 घंटे बाद जब लस्सी का असर खत्म होता है जेदे की, ये फिर आते हैं, ये वजाहतें देनी शुरू कर देते हैं। यानी इस मुल्क का चीफ जस्टिस, इस मुल्क का आर्मी चीफ, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और रो रहे ने भाईजान कि यह काम असी नहीं जे कीता, ए साढ़े ते इल्जाम हैगा जी। और वो बयानियां बनाने वाले एक झूठ बना के उसको बेच के वो निकल जाते हैं। ये थोड़ी देर बाद आते हैं, वजाहतें दे के चले जाते हैं। जब तक पाकिस्तान में डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज के खिलाफ तगड़ा कानून नहीं होगा, यानी वो गले में इत्थे हथ पाना जे जड़ा झूठ बोले, जड़ा फेक न्यूज फैलाए। आप देख लें, मरियम नवाज की मर्सिडीज के बारे में फेक न्यूज फैलाई, हवाई जहाज के बारे में, हेलीकॉप्टर के बारे में, पता नहीं क्या क्या फैलाई जा रहे हैं। उम्रे पे गए हैं जी, खर्च सरकार का, वो सारे अपने पलियों ला के गए, लेकिन उन्हें बयानियां बना रहे हैं भाईजान, वो बनाई जा रहे हैं। असी बैठे हैं, इंतजार फरमा रहे हैं, पता नहीं हुण कादा इंतजार कर रहे हैं। वैसे मैनू ये समझ नहीं आती भाई असी इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं, हम किस बात की, मतलब कि यार ये होगा तो फिर हम ये करेंगे, वो ये करेगा तो हम ये करेंगे। एक काम सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वल्ला एटम बम बनाने से बड़ा काम होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, एटम बम बनाने से ये बड़ा काम होगा। जनाब हाफिज साहब, ओ मेरे प्यारे हाफिज साहब, पता नहीं 20 पढ़ानियां जे कि 8 रोजे 2 ही रह गए जे साडे, तुहाडे पता नहीं कितने ने। फेक न्यूज के खिलाफ कुछ कर दे। डिसइंफॉर्मेशन ने तबाह कर दिया इस मुल्क को, इस नौजवान नस्ल को जहर, उनकी रगों में जहर सरायत कर चुका है। सर जाग जाएं, खुदारा जाग जाएं, वरना आप लेट हो जाएंगे, बहुत लेट, और आप पहले ही बहुत लेट हैं। डिसइंफॉर्मेशन पे, फेक न्यूज पे एक तगड़ा कानून बना के इंप्लीमेंट करवा दें, झूठ की ये दुकानें बंद करवा दें अगर इस मुल्क को आगे चलाना है। अगर आपने ये काम नहीं करना तो फिर तुहाडा हाल पता की होना जे। वो जड़ा सौंदे ने अपनी नूह नाल कीता सी, अब मैं वो यहाँ बता भी नहीं सकता क्योंकि मेरा रोज़ा खुलने में अभी तकरीबन 2 घंटे और 55 मिनट बाकी हैं। और इस हालत में जो है वो निकोटीन का लेवल वो बहुत थल्ले टूर गया है, और भूख का खैर वो तो यहाँ पे नहीं होता। मौसम माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मियाँ साहब अल्लाह का वास्ता जे ए फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ कुछ कर दियो, तुहाडा इस कौम ते बहुत बड़ा एहसान होएगा। सलाम अलैकुम।